Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Student, this is our English period and open your English language textbook. Student, before starting our today's lecture, we will roughly revise our previous lecture. In the previous lecture, we have learnt about Ali Baba and the 40 thieves. We have learnt that Ali Baba and his elder brother Qasim were lived in Baghdad. Qasim was a rich merchant and Ali Baba was a poor woodcutter. We have also learnt that how Ali Baba heard the sound of horses and how 40 thieves were entered into the cave, shouted, "Open sesame." We have learned that how Ali Baba gets richer and he told all the story to his elder brother Qasim. Qasim also wanted to get richer, so he went into the cave, but he was trapped, and we have learned that how 40 thieves stabbed Qasim 40 times. Student, this was a story we have learnt in the previous lecture. So today we will start our next lecture. Class, open your page number 76 of your reading book. You have to mention date, 8th December 2020, classwork, and day, Tuesday, on the top of the page. G class, let's start our today's work. Our first question is, write T for true और F for false against each statement. स्टूडेंट, हमारे पास पेज नंबर 76 पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं. हमने इनके बारे में बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उसके सामने टी राइट करेंगे, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसके सामने एफ राइट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़, अली बाबा वॉज अ रिच मर्चेंट. अली बाबा एक अमीर ताजिर था. No, Ali Baba was a poor woodcutter. So this statement is wrong. We will write F. Second is, he and his brother Qasim lived in Baghdad. He mean Ali Baba. Ali Baba और उसका भाई कासिम बगदाद में रहते थे. Yes, it is true. So we will write T. Third one is, while cutting wood in the forest, जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए अली बाबा हर्ड द साउंड ऑफ हॉर्सेस कमिंग नियर. अली बाबा ने करीब आते हुए घोड़ों की आवाज़ सुनी. येस, इट इज़ ट्रू. वी विल राइट टी. नंबर 4 इज़, अली बाबा हाइड बिहाइंड अ ह्यूज रॉक. अली बाबा ने अपने आप को एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपा लिया. नो, दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज अली बाबा ने अपने आप को ग्रीन लीव्स के दरमियान में छुपाया था. He climbed up a tree and hid himself between green leaves. So this statement is false. We will write F. Number 5 is, Ali Baba saw 40 men standing before a cave. अली बाबा ने 40 आदमी देखे जो कि गार के करीब खड़े थे. With the leader shouting open sesame, अपने आका के साथ जो चिल्ला रहा था, ज़ोर से बोल रहा था, खुल जा सिम सिम. Yes, it is true. We will write T. Number 6 is, there were magic words which made a grand palace appear in its place. जादुई अल्फाज के साथ एक बहुत बड़ा महल ज़ाहिर हुआ था उस जगह पर. नो, इट इज़ फॉल्स. ग्रैंड पैलेस अपीयर नहीं हुआ था, बल्कि केव अपीयर हुआ था. जब चट्टान अपनी जगह से रोल्ड आउट हो गई थी तो बहुत बड़ा केव गार अपीयर हुआ था जिसमें गोल्ड और ज्वेलरी थी. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. वी विल राइट एफ. जी स्टूडेंट, ये नंबर 6 वाला MCQ जो है ना, ये बाय मिस्टेक आपके नोट्स पर भी गलती से यहाँ पे T लिखा गया है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है. T की बजाय यहाँ पे F लिखना है. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट है, द केव वॉज फुल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, क्वाइंस, ज्यूल्स एक्सेट्रा. गार सोने और चांदी के सिक्कों और जेवरात से भरा हुआ था. येस, इट इज़ ट्रू. वी विल राइट टी. नंबर 8 इज़, कासिम वॉज अ वेरी ग्रीडी मैन. येस, कासिम बहुत लालची आदमी था. वी विल राइट टी.
कासिम वॉज ट्रैप्ड इन द केव। यस, एट द एंड हमने देखा कि कासिम फंस गया था गार के अंदर। दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट, वी विल राइट टी। द थीव्स नेवर बॉदर्ड अली बाबा अगेन। क्या चोर दोबारा कभी नहीं पकड़ पाए अली बाबा को, उनका पीछा नहीं किया, उसे नहीं पकड़ पाए। येस, दिस इज़ ट्रू बिकॉज अली बाबा वॉज अ क्लेवर मैन। तो अली बाबा ने सारे थीव्स को किल कर दिया था, मार दिया था। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, वी विल राइट टी। Student, next activity we will cross this activity because we are going to skip this activity. Student, we also going to cross page number 77 because we are going to skip this page. Now we will come on page number 78. You have to write classwork on the top of the page. In this page, our question is match the adjectives with their nouns. हमने adjectives को उनके noun के साथ मैच करना है। स्टूडेंट, हम जानते हैं adjectives क्या है। adjective के बारे में हमने पढ़ा है कि adjective किसी की भी क्वालिटी को शो करता है, noun की क्वालिटी को शो करता है। वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। ओके, और ये noun को हमेशा क्वालिफाई करता है। Let's start. There are two columns. In the first column, adjective words are given, and in the second column, nouns are given. We have to match adjectives with their correct noun. Okay, first word is sharp. We have to match sharp. Sharp meal, sharp praise, sharp knife, sharp rose, sharp nurse. So, sharp knife. We have to match sharp knife. 2 is kind. kind के साथ हम किस नाउन को मैच करेंगे? kind nurse, यानी वो जो नर्स थी वो बहुत काइंड थी, रहम दिल थी। नंबर 3 डिलीशियस। डिलीशियस एडजेक्टिव है, इसको हमने नाउन के साथ मैच करना है। डिलीशियस मील, यानी रात का खाना बहुत मज़ेदार था। फास्ट रेस, तेज़ दौड़। रेड रोज, सुर्ख फूल। So class, in the next activity, you have learned some new words. Fill in the blanks with the words given in the bubbles. स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में, इस स्टोरी में अली बाबा एंड 40 थीव्स बहुत से न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे कि अमेज्ड। अली बाबा की वाइफ जो है वो बहुत खुश हुई थी, अमेज्ड हुई थी इतने ज़्यादा गोल्ड को देख के। पीपिंग, झांकना। अली बाबा जब छुप गया था, उसने अपने आप को ग्रीन पत्तों में छुपा लिया था, तो वो झांक रहा था थीव्स को। प्रॉमिस्ड, अली बाबा ने वादा किया था कि वो अपने बड़े भाई की फैमिली का ख्याल रखेगा। कलेक्टिंग, अली बाबा लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। रोमिंग का मतलब है फिरना, इधर उधर फिरना। तो कासिम के डोंकीज जो हैं वो फॉरेस्ट में इधर उधर फिर रहे थे। तो ये हमारे पास चंद वर्ड्स हैं, हमने इनको करेक्ट वर्ड्स के सेंटेंस के साथ मिलाना है और अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। द शीप वर डैश इन द फील्ड। भेड़ें जो हैं वो फील्ड में, मैदान में क्या कर रही थीं? रोमिंग, फिर रही थीं। ओके, वी विल राइट रोमिंग। जुहैब डैश दैट ही विल हेल्प। जुहैब मदद करेगा। तो जुहैब ने क्या किया? प्रॉमिस किया। जुहैब ने वादा किया कि वो मदद करेगा। जुहैब प्रॉमिस्ड। नंबर 3 द लिटिल माउस वाज डैश एट द बिग कैट फ्रॉम हिज होल। छोटा सा चूहा अपने छोटे से होल में बिल्ली को क्या कर रहा था? पीपिंग, झांक रहा था। ओके, सो वी विल राइट पीपिंग। नेक्स्ट, I was dashed to see the lion performing in the circus. शेरों को सर्कस में परफॉर्म करते देखकर मैं बहुत डैश हुई, अमेज्ड, बहुत ज़्यादा खुश हुई। जी क्लास, नाउ टू हैव यू open page number 79 of your reading book and you have to write classwork on the top of the page. So our last sentence is, the children were dash
small colorful pebbles at the beach. बच्चे साहिल पर छोटी रंगदार कंकरियाँ क्या कर रहे थे? Collecting, इकट्ठी कर रहे थे. The children were collecting small colorful. So we will write here collecting. G class, here today's work is end. You have to write on your rough binders each statement and write against if each statement true or false. Okay, you have to do practice on your rough binders, adjectives and nouns. You have also fill in the blanks. ठीक है, आपने इस पूरे 3 पेज की प्रैक्टिस करनी है अपने रफ बाइंडर्स पे एटलीस्ट 3 टाइम. सो गुड लक क्लास. अल्लाह हाफिज़.